Good morning, students. So let's start with today's biology class. In the previous class, we have started with genetic disorders, in which we have discussed about two types of genetic disorders. So you know that genetic disorders is basically due to change in the genetic makeup of an organism. It can be either due to chromosomal mutations, chromosomal changes or abnormalities, or due to gene mutations. So chromosomal abnormalities, disorders we have already discussed in the previous class. Now we will start with the genetic disorders due to gene mutation. As I have told you, mutation is any kind of change, and gene mutation is when it takes place at a gene level, then it is called gene mutation. So these disorders are also called as Mendelian disorders. तो जीन म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही हमें जो टर्म फैक्टर या जीन जो है वो उसके बारे में बताया था, एंड दैट इज़ वाई वी विल कॉल्ड इट एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके, in this further there are two categories. First is autosomal chromosomal gene mutation and second is sex chromosomal gene mutation. Like in case of chromosomal abnormality disorders, we have discussed two types. One is autosomal chromosomal abnormalities and second is the disorders related with sex linked chromosomes. Okay, so here also if we will talk about gene mutation, तो जो gene mutation है वो autosomal chromosomes में भी हो सकती है या फिर sex chromosomes में भी हो सकती है. उसके बेस पे we have these diseases or disorders, genetic disorders that we are going to study in this topic. Okay, so autosomal chromosomal gene mutation includes, we are going to study these four: sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria and cystic fibrosis. So these four are there which are on the basis of autosomal chromosomal gene mutation. As you know that in an human, if we talk about human or any organism, in its genome there are two types of chromosomes, autosomes and sex chromosomes. Autosomes are similar in both male and female. Sex chromosomes are different depending upon the sex of the organism, which we have already discussed in sex determination. तो इन दिस केस ऑटोसोमल क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन में चांसेस क्या होते हैं? दोनों मेल और फीमेल में ये डिसऑर्डर होने के इक्वल चांसेस होते हैं. सो लेट्स सी दीज डिसऑर्डर्स वन बाय वन. एंड द सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन वी विल स्टडी टू: हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट. So let's see the first Mendelian disorder, that is sickle cell anemia. So sickle cell anemia is an autosomal recessive genetic disorder. So you know that recessive autosomal I have already cleared, means it will be it is due to the mutation on the mutation of the gene on autosome or autosomal chromosome. Recessive means it will express itself only in the होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जीन है, जीन का फंक्शन क्या होता है, वो एक प्रोटीन बनाती है. एंड फॉर एनी जीन देयर आर टू अलील्स विच आर ऑल्टरनेट एंड वन ऑफ विच इज़ डोमिनेंट एंड अदर इज़ रिसेसिव. तो अगर किसी भी जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसके दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है. अगर डोमिनेंट एलील की बात हम करते हैं तो वो अपने आप को होमो और हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस करता है, और हेट्रो अगर हम रिसेसिव एलील की बात करें तो वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है. तो ये जो डिजीज़ है या डिसऑर्डर है ये एक रिसेसिव जीन की वजह से है. थैंक गॉड इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर. अदरवाइज अगर डोमिनेंट होगा तो ये दोनों में से अगर एक भी क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आई तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू द रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. what happens in this case? RBCs बिकम सिकल शेप्ड, इसीलिए इसको सिकल सेल अनीमिया बोला जाता है. नॉर्मली जो RBCs की शेप होती है राउंड शेप, सर्कुलर शेप होती है, एंड इन दिस केस द RBCs बिकम्स लाइक दिस. दिस इज द सिकल शेप्ड ऑफ RBCs. What happens to why this happens? What is the genetics behind this? Let me first clear you. This is a kind of
पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको बताया था जब हमने म्यूटेशन का टॉपिक स्टडी किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए के ऊपर इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सी, टी, ए, जी, इस तरह से बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और इनके एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। एंड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस of the DNA is called gene, and this particular sequence will decide the formation of a particular protein. If any of the nitrogenous base on the sequence of the gene is replaced or changed, then it is called point mutation. Means अगर एक single nitrogenous base में भी change आ जाता है तो उस mutation को हम क्या बोलते हैं, point mutation, because that is because of very single small point, इसीलिए हम इसको point mutation बोलते हैं। And this sickle cell anemia is because of this point mutation. What happens in this? If you will see, if this is the gene which synthesize a specific protein, कौन सा प्रोटीन, ये प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन को बना रहा है, ठीक है। वैसे तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोटीन, कि एक जीन है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना रही है जो कि हीमोग्लोबिन की को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब इस जीन में से हमने एक पोर्शन लिया, उसमें से CTC इज़ अ कोडोन। कोडोन क्या होता है, जीन के ऊपर जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके 3 ट्रिपलेट्स बने होते हैं, एंड दैट triplet is called codon, and that triplet will decide which amino acid will be there in the polypeptide chain to form the protein, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट है, नॉर्मल जीन के अंदर क्या होता है इसका सीक्वेंस, CTC। वैसे ये बहुत बड़ा ट्रिपलेट है, लेकिन जिसके अंदर म्यूटेशन हो रही है मैं आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखा रही हूँ। जैसे अगर ये जीन है तो मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखा रही हूँ जिसमें 3 ट्रिपलेट्स हैं, 3 मीन्स कोडोन है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जीन विच सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। So CTC, it will undergo point mutation and T will be replaced by A, ठीक है। तो यहाँ पे T की जगह पे क्या आ जाएगा, A। तो A आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे point mutation हो गई। अब T की जगह पे A आने से ऐसा क्या होगा कि इतना बड़ा डिसऑर्डर हो गया। Yes, it happens. Due to point mutation, the overall sequence of the gene get distorted, due to which the amino acid जो उसने बनाना था वो चेंज हो जाएगा। अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो गया तो उससे जो फर्दर स्ट्रक्चर बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, जो भी बन रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CTC की जगह पे क्या आ गया, CAC। तो जो CTC था वो कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा था, ग्लूटामिक एसिड। ये जो पूरा डिटेल है जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, जेनेटिक बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस, देन यू विल बी मोर क्लियर कि हाउ वी फाइंड आउट कि कौन सा कोडोन कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है। ये फिक्स होता है, अगर उस कोडोन के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो वो अमाइनो एसिड को भी चेंज कर देता है। तो CTC ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, अब यहाँ पे रिप्लेस किससे हो गया, ये CAC। इसने कौन सा एसिड बना दिया, वेलिन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो गया क्योंकि उसका अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। एंड ड्यू टू दिस द चेंज इन पॉलीपेप्टाइड विल टेक्स प्लेस एंड इट विल फॉर्म डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। और इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो इसका शेप है वो सिकल शेप फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस विल कॉज सिकल सेल अनीमिया। अब इसके कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स क्या हैं या सिम्टम्स क्या हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली एक तो क्या है कि हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्टेड हो गया है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि RBCs जो है वो इस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में, लेकिन अगर वो सिकल शेप में हो जाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे RBC डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। RBCs की डेड होने की वजह से क्या होगा, ब्लड डेफिशिएंसी विच विल कॉज अनीमिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल अनीमिया विच इज़ अ मेंडेलियन जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ हाउ वी कैन फाइंड कि हाउ द सिकल सेल अनीमिया कैन बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट कैन बी द चांसेस।
वी विल सी विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, और उसी के बेस पे हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम ये सारे डिसऑर्डर स्टडी कर लेंगे उसके बाद मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताऊंगी, टू फाइंड आउट कि किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाते हैं। तो उसके हम चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को मेल या फीमेल में से पेरेंटल जनरेशन में एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या चांसेस होंगे चिल्ड्रन को ये डिसऑर्डर होने के। तो टू फाइंड आउट द सिकल सेल एनीमिया वी विल सी अ क्रॉस टू मेक इट मोर क्लियर। So to find out the inheritance of sickle cell anemia, let us see the genotype first. So HB represents the hemoglobin and A represents the normal red blood cell. HbA, HbA, it is the genotype which is in case of normal condition, because I have shown here both the alleles. For every gene there are 2 alleles. HbA, HbS, it is the person suffering from sickle cell anemia, या फिर इसको हम कैरियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैरियर भी बोल सकते हैं और डिजीज भी बोल सकते हैं। रीज़न अभी बताती हूँ। सो HbS is the condition where the person is not able to survive, it will die in the childhood condition, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज पे ही वो, नॉट कंडीशन, at the childhood stage the child will die, he will not reach at the reproductive stage, so we will not consider it। तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं कि सिकल सेल अनीमिया नेक्स्ट जनरेशन में कितने चांसेस हैं उसके ट्रांसफ़र होने के। तो अगर हम HbA HbS शो कर रहे हैं, इट मीन्स इट शोज़ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया। और कैरियर ऑल्सो, कैरियर कौन होता है, जो कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर के स्पेसिफिक जीन को आगे लेके जाता है, उसको हम कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सी कंडीशन दिखाई है। यू कैन हैव डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक द फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, मेल इज़ नॉर्मल, दैट फादर इज़ नॉर्मल, इट मीन्स इट हैज़ HbA, दैट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। फीमेल इज़ सिकल सेल्ड, फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल्ड अनीमिया, इट मीन्स शी हैज़ HbA HbS, क्योंकि अगर वो HbS होता तो वो चाइल्डहुड स्टेज में ही डेथ हो जाती है उसकी, बट हेयर वी आर शोइंग द नेक्स्ट जनरेशन। सो इट मीन्स इफ इट इज़ रिटन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल्ड एनीमिया and if you want to see the next generation of that person, it means they are talking about HbA HbS, क्योंकि HbS HbS तो बहुत सिवियर कंडीशन हो जाती है, इस कंडीशन में पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी द गैमेट्स फॉर्म्ड विल बी HbA HbS. Now to find out the conditions, the situation, the first what will be the possibilities, वही हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे या हम डायरेक्टली इस तरह से क्रॉस करवा सकते हैं। तो क्रॉस करवाने से वी हैव फाउंड HbA HbS, HbA HbS. So this is the normal, this is diseased. Normal, diseased means 50% chance will be normal, 50% will be diseased. सेकेंड केस आता है कि अगर फादर भी डिजीज्ड है और मदर भी डिजीज्ड है, दोनों सिकल सेल से सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें गैमेट्स क्या बनेंगे, HbA HbS HbA एंड HbS। और नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, HbA HbA HbS 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 HbA HbS. So there will be chance, only 25% chance of having normal baby. This is diseased baby. This is completely sickle cell, suffering from sickle cell anemia and will die in childhood, and this is also diseased. Means 25% normal child chances and 50% sickle cell, and 25% is the chance that the child will die at the childhood stage only. Okay, so this can be there can be the different situations. On the basis of this you can find what can be the chances of getting this disease to be transferred to next generation. Okay, so this is all about sickle cell anemia. Let's see the next Mendelian disorder, that is thalassemia.
So next Mendelian disorder is thalassemia. This disease is also called as Cooley's disease because it was discovered by scientist Cooley. Okay, it is an autosomal recessive blood disease. Same autosomal because it is on due to the mutation on autosomal chromosome, and recessive means it will express only in the homozygous condition, and it is a blood disease. Why? Because it is because of also distortion in the structure of the hemoglobin. As we know, hemoglobin is made up of alpha and beta chains. So if there is a defect in the gene synthesizing alpha chain of hemoglobin, then this type of thalassemia is called alpha thalassemia or A thalassemia, means thalassemia A. And if the defect is in the gene forming beta chain of hemoglobin, then such thalassemia is called beta thalassemia or thalassemia B. This is A type, this is B type, depending upon the defect in the gene, mutation in the gene. So what happens in this case? The person's bone marrow does not work properly, the hemoglobin get distorted, the person may suffer from anemia, the RBCs does not synthesize regularly properly. So there should be a regular blood transfusion required by the patient. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी में RBCs सिंथेसाइज नहीं हो पाते, तो इसलिए जो डेड RBCs जो होते हैं ब्लड में से उनको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है. तो पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है रेगुलरली, सो दैट द न्यू RBCs कैन बी एडेड ऑन. ओके, so this is a very severe disease and it is also again an autosomal recessive, so it will be transferred in the same, the inheritance if you will see, it is exactly same as that of sickle cell anemia. So the next Mendelian disorder is cystic fibrosis. It is also abbreviated as CF. It is an autosomal recessive disorder, can be either in infants, child or adults, young adults. It is also because of the mutation, point mutation on the gene on chromosome number 7. So chromosome number 7 के ऊपर एक जीन होती है जिसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है. वो जीन क्या करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करती है पेनक्रियाज में. ठीक है, if this mutation occurs, then the defective glycoprotein will be synthesized by this chromosome number 7. ठीक है, जिससे क्या होगा, पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा. इट विल ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज. तो पेनक्रिएटिक जूस जो है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाएगा, विच मे कॉज प्रॉब्लम इन डाइजेशन. ओके, symptoms, the most important is that the sodium potassium or sodium chlorine balance will be सोडियम क्लोरीन बैलेंस विल बी डिस्टॉर्टेड. तो जो सोडियम और क्लोरीन का जो बैलेंस होता है सेल्स के अंदर वो पूरा मिसबैलेंस हो जाएगा. सेकेंड इज, इफ़ यू विल सी, द स्वेट ऑफ दिस पर्सन विल हैव वेरी हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ थिक म्यूकस इन द लंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. तो जो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एस्थमा हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की. सो दिस इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सो द इनहेरिटेंस विल बी इन द सेम वे. एंड द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ phenylketonuria. We have already studied about this phenylketonuria. Okay, so that is because of some distortion in the enzyme phenylketone, and this will cause the uremia. So this disorder we have already discussed in the chapter. So now we will start with the sex linked chromosomal Mendelian disorders. So the next genetic disorder is sex linked disorders. They are also called X-linked disorders. Why is that so? Because you know that these are sex-linked disorders, so they will include the change in the genes present on sex chromosomes. As you know, in human there are two sex chromosomes, X and Y. If we compare the size of X and Y, the Y is very very small in size and it has rare genes. Very less number of genes which are functional are present on Y chromosome. Even the genes which are present are, most of the genes are non-functional.
तो जो ज़्यादातर अगर हम सेक्स क्रोमोसोमल जीन्स की बात कर रहे हैं तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम बहुत छोटे साइज़ का होता है और उसके ऊपर बहुत कम जीन्स प्रेजेंट होती हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स में से जो वाई क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर सबसे कम जीन्स होती हैं। एंड दैट इज़ वाई एंड इफ़ वी आर नॉट कंसीडरिंग हेयर, इफ़ वी आर नॉट मैंशनिंग हेयर कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है वाई क्रोमोसोम तो मैं ऑटोमेटिकली एक्स क्रोमोसोम के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका रीज़न क्लियर है, बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम्स हैज़ मैनी फंक्शनल जीन्स बट वाई क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव मैनी फंक्शनल जीन्स, ओके। So here we are talking about X-linked disorders. So first one is hemophilia. It is an sex-linked recessive blood disorder. Again it is a recessive disorder, means it will express itself only in the homozygous condition. And it is a blood disorder. Why? It is also called bleeder's disease. और इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली में ही इसका जो है इनहेरिटेंस देखा गया था, जेनेटिकली आगे आगे पास हो रही थी। रॉयल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज फाउंड इन रॉयल फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस कि इतनी इट इज़ एज दैट गुड वी आर कॉलिंग इट एज रॉयल, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट वॉज फाउंड इन द रॉयल फैमिली। वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़? बिकॉज इन दिस केस व्हाट हैपन्स, हेमोफीलिया में क्या होता है कि द पर्सनस एफिशिएंसी टू क्लॉट ब्लड इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अगर वो प्रोटीन, बिकॉज यू हैव स्टडीड द फुल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इन क्लास 11, so if you will find that the blood clotting factors, they play very important role in clotting of blood. If they will not work properly, then there will be difficulty in clotting of blood. So in this case there is a mutation in the gene synthesizing blood clotting factor 8. तो वैसे तो हीमोफीलिया दो टाइप का होता है, एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से फंक्शन नहीं हो पाता तब, या फिर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 की वजह से, बट बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ इसी को स्टडी करेंगे। सो हेयर इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन सिंथेसाइजिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8। तो अगर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं होगा तो प्रॉपर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी बॉडी में वूंड हो जाता है या स्क्रैच हो जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए इस डिज़ीज़ को हम ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाती इसलिए। Now if you talk about the inheritance of this disease, now let's see the genotype first. XX is the normal female, you know that 2 X chromosomes are there in the normal female. If one of the X chromosome carry this disorder, the gene, you can say the mutated gene, then it will be represented by XH, ठीक है। तो यहाँ पे हम XH से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने सिर्फ एक के ऊपर H शो किया है, तो इट मीन्स इट इज़ अ कैरियर फीमेल, मीन्स आपको मैंने बताया इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये दोनों एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे मैंने एक्स के ऊपर एच लिखा है और यहाँ पे भी एच लिखा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने स्मॉल एच का यूज़ किया है बिकॉज द स्मॉल रिसेसिव इज़ ऑलवेज शोन विद द स्मॉल लेटर, ओके। तो XH, X इज़ द कैरियर फीमेल एंड XH, H इज़ द हीमोफिलिक फीमेल। यहाँ पे वी हैव कॉल्ड इट एज कैरियर फीमेल क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ कैरियर, ये सिर्फ जो हीमोफिलिक जीन है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगी, बट ये सिम्टम्स शो नहीं करेगी क्योंकि ये जीन अपने आप को सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है, ठीक है। सो XH, XH इज़ द हीमोफिलिक फीमेल। नाउ इन केस ऑफ मेल्स XY इज़ द नॉर्मल मेल, XHY is the hemophilic male. Now point to be noted that here I have shown H hemophilic gene over X chromosome. Y के ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होती फंक्शनल या हीमोफिलिक, तो यहाँ पे अगर सिर्फ X के ऊपर भी प्रेजेंट होगी तो भी जो मेल है वो हीमोफिलिक हो जाएगा। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ सच डिसऑर्डर्स इन केस ऑफ मेल्स। तो मेल्स के केस में जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता,
और सिर्फ X के ऊपर अगर जीन प्रेजेंट हो भी जाएगी तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट अलील नहीं है उसके पास, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे। नाउ टू सी द इनहेरिटेंस आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्रॉस बना सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, देन यू विल फाइंड द डिफरेंट सिचुएशंस। Here I have shown a normal female parental generation, normal female XX with the hemophilic male XHY. Okay, gametes will be XX normal, and here gametes will be XH and Y. F1 generation will be, you can make the Punnett square to find out XXH, XXH, XY, XY. It is a carrier female, not hemophilic. Hemophilic कब होगी? जब दोनों के ऊपर H होगा। Again it is a carrier female, normal male, normal male. So you can find out, it is surprising that the parental generation, the mother was normal, father was hemophilic, but in the next generation both the male child were normal, क्योंकि जो hemophilic जीन थी वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई? फीमेल के अंदर, ठीक है, डॉटर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बताया था, जहाँ पे जो जीन है वो फादर से डॉटर में जाती है और डॉटर से ग्रैंडसन में जाती है। अगर आप इसकी नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन में ग्रैंडसन होगा उसमें हीमोफीलिया होगा, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हीमोफीलिया ट्रांसफ़र नहीं होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे भी जो फीमेल्स हैं वो नॉर्मल दिखेंगी, हमें हीमोफिलिक नहीं लगेंगी, बट अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में हम उसकी बात करेंगे, इसको क्रॉस को बनाएंगे, देन दे विल ट्रांसफ़र देयर हीमोफिलिक फैक्टर H टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। So like this we can find out the different situations to find out how the different genes or disorders will be transferred to next generation. So the next X-linked chromosomal genetic disorder is color blindness. It is also an sex-linked recessive disorder, means it will also express itself in the presence of in the homozygous condition only, like that of hemophilia, ठीक है। It is also called as red-green color blindness because the person is not able to differentiate between red and green color, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कम्प्लीटली विजन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बट इस केस में क्या होगा, विजन नॉर्मल होगा पर्सन का, पर्सन इजीली देख पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, लेकिन वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जीन रोड्स और कोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी आई सेल्स के अंदर, तो जो कलर्ड सेल्स कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती है उनकी आइज़ में, जिसकी वजह से दे शो कलर ब्लाइंडनेस, अदरवाइज दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल, द विजन इज़ नॉर्मल। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली हम रेड और ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी कलर्स को ही इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस एग्जैक्टली सेम, जो हमने हीमोफीलिया का स्टडी किया है वैसे ही इसमें होगा। XX इज़ द नॉर्मल फीमेल, XCX इज़ द कैरियर फीमेल, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए अगर एक X के ऊपर प्रेजेंट होगा तो ये कैरियर फीमेल होगी, मीन्स इसके अंदर जीन तो प्रेजेंट है, हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड वाली जीन प्रेजेंट है, बट इट विल नॉट शो द सिम्टम्स। नेक्स्ट इज XC इज द कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड फीमेल। नाउ इन केस ऑफ मेल, XY इज द नॉर्मल मेल, XCY इज अ कलर ब्लाइंड मेल, क्योंकि यहाँ पे Y के ऊपर कोई जीन नहीं है, सिर्फ X के ऊपर भी अगर जीन आ गई कलर ब्लाइंड की तो भी वो कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, ठीक है। सो द सेम क्रॉस वी कैन मेक फॉर द कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो, बिल्कुल सेम जो हमने हीमोफीलिया के लिए बनाया था वही सेम होगा। और इससे रिलेटेड जो क्रॉस हैं क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आई विल शेयर सम क्वेश्चंस ऑल्सो विद यू सो दैट यू कैन मेक प्रैक्टिस, यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉसेस, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इनहेरिटेंस, हाउ वी कैन फाइंड कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने चांसेस हैं किसी भी डिसऑर्डर के ट्रांसफ़र होने के। So this is all about genetic disorder. Only one topic is left, that is pedigree analysis.